Praise the Lord, everyone. प्रेज द लॉर्ड सभियों को We once again welcome you all in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सभी को सलाम। Welcome to your hour of miracle. चमत्कार की घड़ी में सभी का स्वागत है And we are so glad that you can join in today's Sunday service. और हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आज के संडे सर्विस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। This time is going to be a blessed time और ये जो समय हम बिताएंगे ये आशीर्वादित समय होने वाला है। as we worship God together. और आज जब हम साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, We will hear the voice of God. आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे And we know that in the time of prayer, और हमें विश्वास है कि आज प्रार्थना के समय में God will touch you. परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा। God wants to do a work in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है He's ready to turn your life around. और वो तैयार है ताकि वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दे। Oh, just get ready to receive something from God today. और आज तैयार हो जाइए परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए। Oh, let's just worship our God. आइए हम परमेश्वर की आराधना He करें deserves our worship. और वो तो इस योग्य है कि हम उसकी आराधना करें। We thank God for His blessings in our life. और आज परमेश्वर के आशीर्वादों के लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं। So just begin to lift up your hands और आज अपने हाथों को उठाइए and begin to worship Him. और आज उसकी आराधना करना शुरू करिए। Thank Him for what He has done. उसने जो भी आपके जीवन में किया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, give you all the glory, all the honor, and all the praises, oh Lord Jesus. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Tell Him. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children, their
favor. धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, Thank you for your goodness and mercy. धन्यवाद आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपके अच्छेपन के लिए। Oh, we give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Speak to us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आज हमसे बातें We कीजिए। pray for all the services that are happening all over the world. आज दुनिया भर में होने वाली सभी सभाओं के लिए, सारी सर्विसेज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Speak to your people today. आज अपने लोगों से आप बातें कीजिए। Meet them in the point of their needs, O Lord. आज वो जहाँ पर भी जरूरत के समय में है, वहाँ पर उनकी जरूरतों को पूरा करिए परमेश्वर। We love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। We welcome you once again. फिर से हम सभी का स्वागत करते हैं। Let's turn to the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। The title of my message is आज का मेरा विषय है Serve Your Generation. अपनी पीढ़ी की सेवकाई करें। So whatever generation you are in today, और आज आप जिस भी पीढ़ी में हैं, let me tell you the blessings of God are from generation to generation. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के आशीर्वाद पीढ़ी से पीढ़ी तक रहते हैं। So today in this generation, और आज इस पीढ़ी में, you are not a coincidence. और आप ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं आ गए, God has placed you in this generation strategically. और परमेश्वर ने आपको आज इस पीढ़ी में बहुत ही ज्यादा योजनाओं के प्रमुख से रखा है। And in every generation, और हर एक पीढ़ी में God uses people like you and me परमेश्वर आपके और मेरे जैसे लोगों का इस्तेमाल करता है, to produce revival, ताकि हमारी पीढ़ी में एक तरीके की बेदारी आने पाए, to produce souls that will come into the kingdom. ताकि वे आत्माओं को लेकर आए जो उसके राज्य में आएंगी। So in every generation we see in the history, God has used people like you and me mightily for His kingdom. और हम इतिहास में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हर एक पीढ़ी में आपके और मेरे जैसे लोगों को इस्तेमाल किया है ताकि वह बेदारी ला सके। When the people looked at themselves, और जब लोगों ने तो अपनी तरफ देखा they है, had no qualification. उनके अंदर तो कोई भी पात्रता नहीं थी। Many were qualified, बहुत सारे लोग तो पात्र थे, but they looked down upon themselves. लेकिन उन्होंने अपने ऊपर तो बहुत ही ज्यादा नीचा देखा है। Many were rejected. बहुत सारे लोगों को तो धिक्कारा गया था, They had a self view about themselves. और वो तो अपने बारे में बहुत ही ज्यादा कम सोचते थे। But that was the person that God chose for that generation. लेकिन वही व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने उस पीढ़ी के लिए चुना था। And today in this generation, और आज इस पीढ़ी में God is looking at you. परमेश्वर आज आपकी तरफ देख रहा है। Will you be that man or a woman to be used for God in this generation? क्या आज आप वो स्त्री, क्या आज आप वो पुरुष होने वाले हैं जिसको परमेश्वर आज की पीढ़ी में इस्तेमाल करेगा? So let's turn to the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे। Acts chapter 13 and verse 36. It says, For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep. प्रेरितों के काम का 13 अध्याय 36 वचन, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी पीढ़ी में सेवा करके सो गया। So the topic is serve your generation. और आज का विषय है अपनी पीढ़ी में सेवकाई करें। And we see that David had served the purpose of God in his own generation. और दाऊद ने तो अपनी पीढ़ी में परमेश्वर की सारी योजनाओं के अनुसार उसने सेवा की है। And Bible says that he fell asleep. और फिर बाइबल कहता है फिर वो सो गया है। So the word means he completed his course of his life. इसका मतलब है उसने अपने जीवन में सारे कामों को पूरा किया है, Nothing was left undone. और कोई भी ऐसा काम नहीं था जो अधूरा रह गया है। So he served God faithfully in his own generation. और उसने अपनी खुद की पीढ़ी में विश्वासु तरीके से परमेश्वर की सेवा की है। Remember that we all have one life. और याद रखिए हम सभी को सिर्फ एक ही जीवन मिला है। And Bible says that God has plans and purposes for your life and my life. और वचन तो ऐसा कहता है कि परमेश्वर के पास आपके और मेरे जीवन के लिए एक योजना है। God has called you and me to be His hands and His feet, His voice in this generation. और परमेश्वर ने तो आपको मुझे पूरी तरीके से अपने हाथ और पैर और अपनी आवाज के रूप में हमें बुलाया है। So David was used by God to serve his generation. और परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल किया ताकि वह उस पीढ़ी में कार्य कर सके। Or somebody has said, किसी ने तो कहा है, few things are more painful than unfulfilled lives. और कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाते। Or today if you go to any cemetery or any place where the dead are lying, अगर आज आप कब्रिस्तान में जाएंगे जहाँ पर मरे हुए लोग हैं, oh there are many tombs that are filled with people or dead who have not fulfilled the call in their life. और बहुत सारी आज ऐसी कब्रें हैं उन लोगों से भरी हुई हैं जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा ही नहीं किया। Some people would have become a wonderful artist. और शायद कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे चित्रकार बन सकते होंगे। Many people would have become good music directors or songwriters. और कुछ लोग तो अच्छे गीत लिख सकते होंगे, कुछ लोग तो अच्छा संगीत ऐसा बना सकते होंगे। Many people had talents. और बहुत सारे लोगों को बहुत ही सारी परमेश्वर ने टैलेंट्स भी दिए थे। God gave them precious giftings in their life. परमेश्वर ने
ने तो उनको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तोहफे दिए थे, but they did not use it to the fullest. लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं किया। But brothers and sisters, लेकिन भाई और बहन, God is looking at you. परमेश्वर आज आपकी तरफ देख रहा है। Do not think that you don't have anything. ऐसा मत सोचिए कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। God has created you. परमेश्वर ने आपको बनाया है, And God has deposited giftings and talents in your life. और आज परमेश्वर ने अनेक टैलेंट्स को, अनेक ऐसे तोहफों को आज आपके अंदर रखा है। Why He has done that? ऐसा क्यों किया है उसने? Because He wants you to serve your generation. क्योंकि वह चाहता है कि आज आप अपनी पीढ़ी की सेवा करें। So here we see that there were a lot of problems in the time of David. हम देख सकते हैं कि दाऊद के समय में अनेक समस्याएं थी, The king before him did not live the life as it was pleasing to God. और दाऊद के पहले जो राजा था उसने ऐसा जीवन नहीं जिया जिससे परमेश्वर को खुशी मिले। So the nation was in turmoil and it was chaos. और जो राज्य था वो पूरी तरीके से एक मुसीबतों में था और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में था, People were looking for answers. और लोग तो एक उत्तर को ढूंढ रहे थे, There was enemy that was surrounding the nation. और अनेक ऐसे दुश्मनों के द्वारा वो राष्ट्र पूरी तरीके से घिरा हुआ था, People were feeling intimidated. और लोग बहुत ही ज्यादा डर में जी रहे थे। And at that time, और उस समय में God raises this young man named David. परमेश्वर ने इस जवान लड़के को खड़ा किया है जिसका नाम था दाऊद, And God used him to serve the generation that he was in. और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया है ताकि वे उस पीढ़ी में सेवा कर सके। So we all know और हम जानते हैं that you and me have to serve our generation today. कि आज आपको और मुझे इस पीढ़ी में सेवा करनी है। So we know that generation is almost 35-40 years of time duration. और एक पीढ़ी का मतलब क्या होता है? 30 से 40 साल। Maybe you can serve God more than that. और शायद आप परमेश्वर की इससे भी ज्यादा सेवकाई कर सकते हैं। So today God is going to talk to you और आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, and challenge you और आज आपको एक तरीके का चुनौती देना that चाहता do है not waste your life. कि आज अपना जीवन बर्बाद मत करिए। People are surrounded by tons and tons of problems. और लोग तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से घिरे हुए हैं, There is sickness all around, और हर जगह तो बीमारी फैली हुई है, unemployment, और हर जगह तो बेरोजगारी है, financial difficulties. और अनेक तरीके की आर्थिक समस्याएं हैं। Many people are living in discouragement. अनेक लोग तो बहुत ही ज्यादा निराशा में जी रहे Oh, हैं। just the other day I was reading the news. और मैं एक दिन न्यूज पढ़ रहा था, A wonderful doctor, he just committed a suicide. एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, He said that this life is not worth living. और वो कहने लगा अरे जीवन को जीने का तो मकसद ही नहीं है So कुछ, people are going through many things. और लोग बहुत ही ज्यादा बातों से गुजर रहे हैं, We have to serve this generation. और हमें इस पीढ़ी की सेवा करनी है। And today, just ask God that God, I am that person. I am feeling insignificant, but according to your word, use me. और आज परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं आपके किसी भी काम के पात्र हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। So you might be the person who is asking, will God use me? और शायद आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूछ रहे हैं क्या परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा? If David can be used by God, अगर परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है God can use you. तो हाँ, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता So है। how did David serve God? तो दाऊद ने परमेश्वर की सेवा कैसे की? So first thing, he served his generation through psalms or songs or his worship ministry. सबसे पहली बात, उसने अनेक भजनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा अपनी पीढ़ी में सेवा की है। Not only he served his generation, but till this generation we are blessed by his ministry. और अपनी ही पीढ़ी में नहीं, लेकिन आज की इस पीढ़ी में भी उसके गीतों के द्वारा, उसके भजनों के द्वारा आज भी हम आशीर्वादित होते He हैं। wrote hundreds of psalms. उसने सैकड़ों ऐसे भजन लिखे हैं, And because of his psalms, many people are finding strength even today. और आज उन भजनों की वजह से अनेक लोग आज के समय में भी ताकत पा रहे हैं। Maybe this morning you would have read one of the psalms, और शायद आज की सुबह को आपने एक भजन पढ़ा होगा, and that would have ministered to you. और शायद परमेश्वर बातें की Oh, होंगी। let me tell you, he had nothing in his life. मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके जीवन में तो कुछ भी नहीं था, But maybe somebody taught him that playing that harp. और शायद किसी ने तो उसको वीणा बजाना सिखाया So he होगा, began to diligently use that harp in glorifying the name of God. और उसने उस वीणा को बजाकर परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर So दिया। whatever small talent, whatever small thing God has deposited in you, और आज जो भी परमेश्वर ने खूबियां आपके जीवन में दी हैं, or he did not have any audience. और उसके सामने तो कोई दर्शक नहीं थे, He was alone worshiping the name of God. और वह अकेले में परमेश्वर की आराधना कर रहा And था। whatever you do in alone, और जो भी आप अकेले में करते or हैं, whatever you do when nobody is looking at you, और जो भी आप तब करते हैं जब आपके आसपास कोई नहीं होता, that is building your character. और वो बातों से तो आपका चरित्र बनता है। And he was faithful in the small that God deposited in his life. और परमेश्वर ने जो भी थोड़ा उसको दिया था, वो सारी बातों के साथ वो
वो बहुत ही ज्यादा विश्वासु था And God began to add many new things in his life. और परमेश्वर ने अनेक ऐसी बातों को उसके जीवन में बढ़ाना शुरू कर दिया So he served his generation by his worship ministry. और उसने अपनी पीढ़ी में भजनों के द्वारा आराधना के द्वारा सेवा की है And we all know that when he used to play that harp, और हमें पता है कि जब वह वीणा बजाता था evil spirit used to depart. और शैतानी जो ऐसी अशुद्ध आत्माएं थी वो भाग जाती थी Oh, many people were inflicted and many people were affected by the demonic powers. और अनेक लोग वहां पर अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित थे But whenever he used to worship God, लेकिन जब भी वे आराधना करता oh, था as the word of God says, where the spirit of the Lord is, there is freedom. जैसे कि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर तो आजादी है So there was freedom wherever he worshipped God. और वे जहां पर भी आराधना करता था वहां पर पूरी तरीके से आजादी आ जाती Life थी without purpose is a pointless life. और अगर हमारा जीवन में कुछ आज उद्देश्य नहीं है तो वो हमारे जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं है So brothers and sisters, first thing we saw that he served his generation through his music ministry. तो सबसे पहली बात हमने देखी कि उसने अपनी पीढ़ी में आराधना की है परमेश्वर को संगीत के द्वारा उसने सेवा की है Second thing, दूसरी he बात served his generation through his leadership as a king. और दूसरी बात उसने अपनी पीढ़ी में राजा होने के नाते सेवा की है So becoming a king was God's will for his life. और परमेश्वर की इच्छा थी कि वे राजा बनने So पाए there is no such thing that everybody has to become a king. और ऐसा नहीं है कि सभी लोग को राजा बनना होगा But the good news is, लेकिन अच्छी खबर ये in the है New Testament, कि नए नियम में God gives us a confidence कि परमेश्वर हमको एक भरोसा देता है that we are kings and priests. कि हम तो राजा हैं और हम तो पूरी तरीके से याजक We हैं might not physically sit on a throne, और शायद हम ऐसे वास्तविक तरीके में ऐसे सिंहासन के ऊपर तो नहीं but God has बैठे given us the authority and power in the supernatural realm. लेकिन परमेश्वर ने अलौकिक बातों में तो हमको एक अधिकार दिया है एक सामर्थ दिया है We can declare things. और आज हम घोषित कर सकते हैं We can command things. और आज हम पूरी तरीके से आदेश दे सकते हैं Before he became a king, और राजा बनने के पहले he had this quality of become a servant. और उसके अंदर एक खूबी थी कि वे तो एक सेवक था He was faithfully serving his father's sheep. और वे अपने पिता की सेवकाई कर रहा था उसके भेड़ों की रखवाली करके He was faithfully serving his brothers. और वे अपने भाइयों की सेवकाई कर रहा And था later he was serving in the palace of King Saul. और फिर वे शाऊल राजा के महल में भी उसकी सेवा कर रहा था And he was a servant at his heart. और उसके दिल में तो वो एक सेवक था When he became a king, और जब वे राजा बना है he did not act like a king. उसने राजा के जैसा बर्ताव नहीं किया He was always there to serve people. लेकिन वह हमेशा वहां पर था ताकि वे लोगों की सेवकाई कर So सके we saw that he is serving his generation. और वे वहां पर अपनी पीढ़ी की सेवा कर रहा है So he took his ministry, he took his position as a step of servanthood. और उसने अपनी जो भी पद था उसमें उसे सेवकाई करने के लिए उसको चुना है He knew the heart of God. वे परमेश्वर के दिल को जानता था He knows that God likes the people who serve others. और उसे पता था कि परमेश्वर को तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो दूसरों की सेवकाई करते हैं So he became the servant of his people. तो वे अपने लोगों की सेवा करने And लगा after that we see a few generations later, और फिर हम कुछ पीढ़ियों के बाद देखते हैं oh, his grandson Rehoboam, जो भी उसका पोता रहोबाम था he did not serve his people. उसने तो अपने लोगों की सेवकाई नहीं He की began to demand many things from people. लेकिन वे तो लोगों से बहुत सारी चीजों की अपेक्षा करने And लगा because of which the kingdom was divided. और इसकी वजह से तो राज्य जो है वो दो भागों में बढ़ गया So he served the kingdom like a king. और उसने तो राज्य की सेवा इस राजा के जैसे की है And the king which we are talking about is the heavenly king, और आज हम जिस राजा के बारे में बात करें वो स्वर्गीय राजा है Jesus Christ. यीशु मसीह So David had an idea about the coming Messiah, और दाऊद को तो आने वाले मसीहा के विषय में पता था that he is going to come as a lowly king. कि वह तो एक ऐसा राजा होने वाला है जो बहुत ही ज्यादा नम्र होगा He is going to come and serve people. और वे आएगा और वो लोगों की सेवा करेगा Third thing, तीसरी बात he served his generation by becoming a man after God's own heart. तीसरी बात वह अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के दिल के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बन गया Oh, है it says in Acts chapter 13 and verse 22 says, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. और यहाँ पर प्रेरितों के काम के 13 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि मुझे एक मनुष्य यीशु के का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है Who will do all my will. जो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा God has a will. परमेश्वर की इच्छा है God has plans. परमेश्वर की योजनाएं हैं So he found one man. और उसने एक व्यक्ति को पाया है That means God was searching for a man or a woman. इसका मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति को या एक स्त्री को ढूंढ रहा था And God was searching a person who will come and fulfill his will. और परमेश्वर एक ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो उसकी इच्छा को पूरा करेंगे Then came Saul in the picture.
picture. और फिर अचानक से उस चित्र में शाऊल आ गया So God thought that he's going to fulfill my will. और परमेश्वर को तो लगा कि हाँ शाऊल मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा, But he disappointed. लेकिन परमेश्वर को तो उसने निराश कर दिया है। Finally, God says, I found a man after my own heart. और फिर परमेश्वर अभी बता रहा है कि मैंने तो एक व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो मेरे मन के अनुसार है। So maybe in this generation, और शायद इस पीढ़ी में God might be looking for that man or that woman और शायद परमेश्वर आज एक स्त्री या एक पुरुष को ढूंढ रहा है that will fulfill his plans, जो उसकी इच्छा को पूरा who करेंगे, will do according to the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे। Maybe today is the day that God is going to find someone. और शायद आज के दिन परमेश्वर किसी को तो ढूंढने वाला है। If you're going to open your hearts अगर आज आप अपने दिलों को खुला रखेंगे and begin to surrender your life, और अगर आज आप अपने जीवन को पूरी तरीके से उसको दे देंगे, God says that I will find you. और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। And God might say that I have found a man or a woman for this generation. और परमेश्वर आज की पीढ़ी में भी ऐसी गवाही दे सकता है कि मुझे एक ऐसा स्त्री मिल गई, ऐसी पुरुष मिल गया जो मेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए So तैयार है। before we fulfill the plan of God on our life, और पहले परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा होने के पहले हमें क्या करना we है? need to understand what is the plan and the purpose of God for our life. हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए इच्छाएं और योजनाएं क्या हैं। Brothers and sisters, भाई और बहन, many times we live in this world और आज हम जब इस जीवन में जी रहे हैं and we don't understand the purpose for our life. और कई बार हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते And because of that, our life becomes miserable. और इसकी वजह से कई बार हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हम बिताने लगते हैं। David knew the will of God for his life. दाऊद को अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा और योजना पता थी Because of the struggles and because of all the things that he went through, और अनेक ऐसे संघर्षों से और अनेक ऐसी मुसीबतों से जब वो गुजरा है he learned the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख लिया है। But later his son comes लेकिन बाद में उसका बेटा आया है and his name is Solomon. और उसका भी नाम तो था शलमोन From childhood he got everything. और बचपन से ही उसके पास हर एक चीज थी। Yes, he heard the voice of God. हाँ, उसने परमेश्वर की आवाज सुनी है, But he did not go in the struggles like his father. लेकिन वह अपने पिता के जैसे संघर्षों में और मुसीबतों में नहीं गया है। Many times you think, why am I going through these struggles? और अनेक बार आप अपने जीवन में सोचते मैं इतनी सारी मुसीबतों से क्यों जा रहा हूँ? Because God is building you and your character क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है और आपके चरित्र को बना रहा so है that you can experience God. ताकि आप परमेश्वर का अनोखा अनुभव कर सकें। But for Solomon, लेकिन शलमोन के लिए everything was ready made. सब कुछ उसके लिए था He tried living his life for his possessions. और वह तो अपनी संपत्ति के लिए जीवन जी रहा था। There was no purpose in his life. उसके जीवन में तो कोई उद्देश्य ही नहीं So था he thought that I'm going to live my life according to my possessions. और वह सोच रहा था कि मैं सारी संपत्ति के अनुसार मैं अपना जीवन जीऊंगा। When you don't have purpose, और जब आपके जीवन में उद्देश्य नहीं you होता try to fill that vacuum or that gap with your possessions. और अनेक बार जो वो अंतर है वो उसको आप कैसे भरते हैं? आपकी संपत्ति के द्वारा या कुछ बातों के But द्वारा। let me tell you, nothing is going to change those things what God has for your life. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भले ही आप अपने जीवन को कितना भी भर ले, परमेश्वर की इच्छा के बिना आपका जीवन तो पूरी तरीके से खोखला ही रहने वाला है। The value of purpose is important than the possessions. और आज परमेश्वर की इच्छा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी संपत्ति से ज्यादा। So he began to accumulate lot of wealth. और वह तो बहुत ही ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करने लगा And in the end of his days, he says that all this wealth is of no use. और अंत में अपने जीवन की वो गवाही देता है कि अरे ये सारी संपत्ति किसी भी काम की नहीं है। Solomon was accumulating lot of wealth, और शलमोन तो बहुत ही ज्यादा संपत्ति को इकट्ठा कर रहा था, but his kingdom was suffering. लेकिन उसका राज्य तो बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से जा रहा था People were imposed lot of heavy taxes, और लोगों को तो बहुत ही ज्यादा भारी कर भरना पड़ रहा था and they were going through so many burdens. और उनका जीवन तो मानो बोझ से भर गया था। So yes, he received wealth, और हाँ, उसने संपत्ति तो प्राप्त की, but there was no purpose. लेकिन उसके जीवन में तो कोई उद्देश्य ही नहीं था। Second thing, दूसरी बात, he tried to live his life with prestige and power. और वह तो अपना जीवन सामर्थ्य से और इज्जत से जी रहा था So he did not give importance to the purpose, और उसने परमेश्वर के उद्देश्यों को महत्व नहीं दिया, but he began to give importance to power and the prestige. लेकिन वह तो ज्यादा महत्व इज्जत को और पद को देता था। Yes, he became a powerful king. हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा सामर्थी राजा था Many kings and queens began to come to visit him, और अनेक राजा और अनेक ऐसी रानियां आती थी उसके साथ मिलने के लिए, but nothing can compare to the God-given purpose. लेकिन परमेश्वर जो उद्देश्य देता है उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा Third सकती। thing, तीसरी he बात, was living a life of pleasure. और वह तो बहुत ही ज्यादा आराम की और ऐशो आरामी का जीवन जी रहा था So he replaced the purpose with pleasure. और उसने
परमेश्वर के उद्देश्यों को आराम से पूरी तरीके से हटा दिया trying to fill that gap, trying to fill that vacuum. और जो खोखलापन उसके जीवन में था उसको वह पूरी तरीके से ऐशो आरामी से भरने He लगा began to have a lot of wives and concubines. और उसकी बहुत ही ज्यादा पत्नियां और उपपत्नियां होने लगी। But this pleasure was not able to replace the God-given purpose in his life. लेकिन वो सारी बातों को करने के बाद भी उसके जीवन में खोखलापन था। क्यों? क्योंकि उसके परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था। And finally he writes a book और फिर वो अंत में एक पुस्तक लिखता है and he says that everything is vanity. और वो कहता है कि सब कुछ बेकार है I did not understand the purpose of God for my life. और मैं परमेश्वर के उद्देश्य को मेरे जीवन के लिए समझ ही नहीं पाया। So few things we can see today और आज हम कुछ बातें देख सकते to the हैं life of Solomon, शलमोन के जीवन that the से life without purpose is a useless life. कि परमेश्वर के उद्देश्यों के बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है। It says in Ecclesiastes chapter 1, और सबोपदेशक के पहले अध्याय में लिखा है, O King Solomon writes, vanity of vanities. और शलमोन राजा लिखता है कि व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। So the word vanity in Hebrew language, और जो व्यर्थ शब्द इब्री भाषा में इस्तेमाल हुआ it है means useless, इसका मतलब है वो किसी भी काम का नहीं है। meaningless. इसका मतलब उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। So the life without purpose is meaningless or useless. और हमारा जीवन परमेश्वर के उद्देश्यों के बिना तो बेकार है, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। So that's why we need to understand the purpose of God. इसके लिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को समझना जरूरी है। Second thing, दूसरी बात, life without the purpose is a tiring life. और परमेश्वर के उद्देश्यों के बिना तो हमारा जीवन थकान भरा है। Solomon said in Ecclesiastes 1 and verse 5 to 7. और शलमोन कहता है सबोपदेशक के पहले अध्याय 5 से 7 वचन He's में, talking about the circles that goes on in this world. और वो कहता है कि अनेक ऐसी बातें हैं जो रोज रोज होती हैं, The sun rises in the morning कि सूर्य उगता है and it goes in the evening. और अस्त होता है, The wind goes and wind comes. और हवा जाती है और आती है, So everything is just going in circles, going in motions. और हर एक चीज तो मानो एक जैसी ही होती जा रही है, रोज रोज वही बातें हो रही हैं। So he says that my life is become like that. और वो कहता है मेरा जीवन भी तो ऐसा ही हो गया है। Many of you are doing that same thing. और शायद आप भी आज अपने जीवन में ऐसा ही महसूस कर You are रहे getting हैं। up in the morning, आप सुबह उठते हैं, having food, आप खाना खाते हैं, watching TV, आप टीवी देखते हैं, just go around in this world, और दुनिया में इधर उधर घूमते हैं, and again in the night you come. और फिर से रात में आ जाते हैं, You have done a lot of things during the day, और पूरे दिन में आप अनेक कामों को करते हैं, but when your head hits the pillow, लेकिन जब आप रात में उस बिस्तर पर सोते हैं, you feel lonely. आप अकेलेपन को You महसूस करते feel हैं, that there is something empty inside of your heart. और आप अपने दिल में सोचते हैं कि एक तो खोखलापन महसूस हो रहा You है। did a lot of work, आपने तो बहुत सारा काम किया है, but you did not feel that you have accomplished anything. लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं कर पाते कि आपने कुछ बात को हासिल किया है। Maybe just like the people who are in prison, और शायद कुछ ऐसे लोग जो आज जेल में हैं, they are given a daily task. और उनको रोज का काम दिया जाता है, Many of them are told to dig holes. और अनेक लोगों को तो खड्डे खोदने के लिए कहा जाता है, So they dig holes just because it is a punishment. और कुछ लोग तो खड्डे इसके लिए खोदते हैं क्योंकि उनको सजा दी जाती They है। dig the holes, वो खड्डे खोदते हैं then they have to take the dirt and throw it outside. और फिर उनको वो मिट्टी उठानी होती है और बाहर फेंकनी होती है, So they are not accomplishing anything. और वे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पा They are रहे। working hard. वो तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे They are हैं, sweating. वो बहुत ही ज्यादा पसीना बहा रहे But हैं, at the end, it is just a ditch or it's just a hole. लेकिन अंत में जब देखा जाए तो वो खड्डा सिर्फ खड्डा है, खाली जगह है। And in many prisons, और अनेक ऐसी जेलों में they again throw the dirt in the same ditch. और अनेक ऐसी मिट्टी को वापस उसी खड्डे में फेंक दिया So जाता है। maybe your life is like that. और शायद आज आपका जीवन ऐसा ही हो गया है, You are working hard, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे yet हैं, there is no satisfaction. लेकिन कोई भी संतुष्टि नहीं है। Third thing, life without purpose is unfulfilling. तीसरी बात, परमेश्वर की योजनाओं के बिना तो हमारा जीवन तो खोखला है, खाली है। Ecclesiastes chapter 1 verse 8 to 10, सबोपदेशक का पहला अध्याय 8 से 10 वचन, where he says all things are full of labor. वो कहता है कि सभी काम तो मेहनत से भरे हुए हैं, The eyes are not satisfied. आंखें संतुष्ट नहीं है, Ears are not satisfied. हमारे कान संतुष्ट नहीं है, So everything seems like unfulfilling. और सब कुछ तो ऐसा लगता है कि अधूरा रह गया है। So many of you are getting restless today, और आज अनेक लोग ऐसी ही दुविधाओं में हैं that nothing is being fulfilled in your life. कि कोई भी चीज आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है। Take a example of TV remote control. और सोचिए जरा, टीवी का जो रिमोट होता है, There is a good TV before them, आपके सामने तो एक अच्छा टीवी है, but people are not finding any satisfaction. लेकिन लोग
लोगों को तो किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं मिल There रही are है 1,000 channels. और अनेक ऐसे हजारों चैनल्स हैं, But they are just continue to flip the channel. They are not just getting fulfilled anything in their life. और वे बार बार चैनल को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी भी बातों में संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा Because there रहे, is no goal. क्योंकि उनके जीवन में तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। Brothers and sisters, if you are having a life, भाई और बहन, अगर आज आपका जीवन है, especially if you are young, अगर आज आप जवान व्यक्ति हैं, do not waste your life. अपना जीवन बर्बाद मत करिए। Yes, you would have lost a job. हाँ, शायद आपकी नौकरी चली गई होगी। Yes, times are hard. हाँ, शायद मुश्किल समय है, But this world is full of opportunities. लेकिन ये जो दुनिया है वो अनेक मौकों से भरी हुई है। Remember that God has created you and me in His image and in His likeness. याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अपने ही जैसा ही बनाया है। Everything starts with a thought. हर एक बात सोच के द्वारा शुरू होती And है, every day we think thousands of thoughts. और हर एक दिन हमारे मन में हजारों ऐसी सोच आती हैं, You need to think right thoughts. और आज आपको सही सोच को सोचना है। Maybe one thought can change the course of your life. और शायद एक सोच की वजह से आपका पूरा जीवन बदल सकता Maybe you है। will get a thought, you get an idea, और शायद आपको जब एक सोच मिलेगी, एक तरीके का विचार मिलेगा, and that can change your entire life. और उसकी वजह से शायद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। Fourth thing, चौथी बात, life without purpose is insignificant. और हमारा जीवन उद्देश्य से अगर भरा नहीं हुआ होगा तो वो पूरी तरीके से बेकार और व्यर्थ होगा। So he says in Ecclesiastes 1 and verse 11, सबोपदेशक के पहले अध्याय और 11 वचन में कहता there है, is no remembrance of former things, और पुरानी बातों को तो कोई याद ही नहीं रखता, and nobody will remember about the things that will come. और कोई भी आने वाली बातों को भी याद नहीं रखेगा। So he says that everything is insignificant. और वो कहता है कि हर एक बात जो है वो व्यर्थ है, बेकार है। But this is coming from a person who doesn't have a purpose for his life, लेकिन ये बातें उस व्यक्ति के द्वारा आ रही हैं जिसके जीवन में खुद कोई उद्देश्य नहीं था, who doesn't know the will of God for his life. जो तो अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता। So today the topic of our message is और आज का हमारा संदेश है serving this generation. कि इस पीढ़ी की सेवा करना। David served this generation according to the will of God. और दाऊद ने अपने पीढ़ी की सेवा परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार की है। Yes, God has a plan for your life. हाँ, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना But है, it is your and my responsibility to understand the will of God for our life. लेकिन ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की बातों को जान पाएं। So how did David serve his generation? और दाऊद ने अपनी पीढ़ी की सेवा कैसे की है, So let's see some principles, और आज हम कुछ सिद्धांतों को देखेंगे, and through that we can also apply that in our own life. और उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में खुद भी लागू कर सकते हैं। First thing, सबसे पहली बात, David had a vision of God's purpose in his life. और दाऊद के जीवन में तो एक दर्शन था परमेश्वर की इच्छाओं और योजनाओं के विषय And में। again we read in the word of God, बार बार हम वचन में पढ़ते हैं, without vision people perish. और बिना दर्शन के तो लोगों का नाश हो जाता So है। David had a vision for his life. और दाऊद के जीवन में तो परमेश्वर का एक दर्शन था। When he became a king, जब वे राजा बना है, his vision was to build the temple of God. उसकी इच्छा थी, उसकी एक सपना था कि वे परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए। So he was gathering everything for the construction of the temple of God. और वे मंदिर को बनाने के लिए हर एक चीजों को इकट्ठा कर रहा था। He purchased the land. उसने जगह को खरीदा He है, got the gold, he got the silver, he got everything to start with the vision that God has given in his heart. उसने सोना इकट्ठा किया है, चांदी इकट्ठा किया है। उस दर्शन को पूरा करने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। So today if you have a vision of God, अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का कुछ दर्शन है, so you will move along those lines. और आप उन्हीं के अनुसार चलेंगे, You will not waste your energy and resources on unnecessary things. और आप बेकार चीजों के ऊपर अपना समय और अपना ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। As it is said in Ecclesiastes chapter 9 and verse 10, whatever your hand finds to do it with all your might. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. सबोपदेशक का 9वां अध्याय और 10वां वचन, जो काम तुम्हें मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तुम जाने वाले हो, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। So Bible says, और वचन कहता है, whatever your hand finds to work, do it. और जो भी काम आपके हाथ को मिले वो कर लीजिए। Brothers and sisters, there is a lot of work in this world. और आज इस दुनिया में अनेक काम है, But you need to find that work. लेकिन आपको उस काम को ढूंढना The होगा। word says your hand finds that work. और यहाँ पर वचन कहता है कि जो भी आपके हाथ को काम मिले, Oh, brothers and sisters, many are just sitting idle. और बहुत सारे लोग तो आज ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। You need to find that work. आज आपको उस काम को ढूंढने की जरूरत You है, need to find that opportunity. और आपको उस मौके को ढूंढने की जरूरत है। Oh, brothers and sisters, भाई और बहन,
opportunities would have come in your life, और अनेक मौके आपके जीवन में आए होंगे, but you would have neglected that. लेकिन शायद आपने उन्हें नजरअंदाज किया But होगा। as you pray, लेकिन आज जब आप प्रार्थना कर रहे today God हैं, will open your eyes परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा and bring the opportunities to you. और वे अनेक ऐसे मौकों को आपके सामने लेकर आएगा। So first thing, सबसे पहली बात, how can we serve our generation? हम अपनी पीढ़ी में सेवा कैसे कर सकते We हैं? need to have a vision for this generation. हमें इस पीढ़ी के लिए एक दर्शन होना जरूरी है। Second thing, दूसरी बात, David received an anointing. Because of that anointing, he was able to serve his generation. दूसरी बात, दाऊद को एक अभिषेक प्राप्त हुआ है और उस अभिषेक की वजह से वे अपनी पीढ़ी की सेवा कर पाया है। And we see in the word of God, और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, it says in 1 John that you have the anointing from God. पहले यूहन्ना में लिखा गया है कि तुम्हें तो परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त हुआ And है that anointing of God resides inside of you. और आज परमेश्वर का वो अभिषेक तुम्हारे अंदर वास करता है। Holy Spirit is living inside of you. पवित्र आत्मा आज तुम्हारे अंदर है। From the day that David was anointed, और जिस दिन से दाऊद का अभिषेक हुआ था, his life turned around. उसका जीवन तो मानो बदल ही गया। His life became meaningful. उसके जीवन में तो एक अर्थ आ गया। God began to bring many good people in his life. उसके जीवन में परमेश्वर अनेक अनेक अच्छे लोगों को लाने लगा। He received good friends. उसके तो अच्छे दोस्त होने लगे He became the son-in-law of a king. और वह तो एक राजा का ऐसा दामाद बन गया। God brought meaningful people in his life. और परमेश्वर उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा अच्छे लोगों को लेकर आया है And they were ready to support his vision. और वे उसके दर्शन को पूरी तरीके से सहायता करने के लिए तैयार Those थे। people were going to risk their own life for the vision that God gave David. और वो लोग तो अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए तैयार थे उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने दाऊद को दिया था। Because anointing always attracts. क्यों? क्योंकि जो अभिषेक है वो हमेशा लोगों को आकर्षित करता है। So how can we serve this generation? आज हम इस पीढ़ी की सेवा कैसे कर सकते We हैं? need to receive the anointing from God. हमें परमेश्वर से अभिषेक को प्राप्त करना Oh, the होगा। word of God tells us परमेश्वर का वचन कहता है that Jesus will baptize us with the Holy Spirit and with fire and with the power of God. और यीशु मसीह तो हमको बपतिस्म देगा अपने सामर्थ के द्वारा, वो पानी के द्वारा, उस अग्नि के द्वारा। And when we receive that anointing of the fire, और जब हम उस अग्नि के सामर्थ को प्राप्त करेंगे we become zealous for God. और हम परमेश्वर के लिए तो जोश से भर जाते There हैं। is a passion in our life. हमारे जीवन में तो पूरी तरीके से एक ऊर्जा आ जाती है We cannot keep quiet. और हम शांत नहीं रह सकते Our hands will always find something to do. और हमारे हाथों में तो कुछ भी मिल ही जाएगा जो करने के लिए होगा। So we see in the word of God हम परमेश्वर के वचन में देख in सकते 1 हैं Peter chapter 2 and verse 9 और पहले पत्रस के दूसरे अध्याय और 9वें वचन that में we are chosen generation. हम तो एक ऐसी चुनी हुई पीढ़ी है। 1 John chapter 2 and verse 27. पहले यूहन्ना का दूसरा अध्याय और 27 वचन It says that we have anointing. कि हमें तो एक अभिषेक प्राप्त हुआ है। But when David was anointed, लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ था, he cultivated that anointing. उसने उस अभिषेक में बढ़ोतरी की है। He began to spend more time in the presence of God. वह परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगा है। He used to get happy when he had opportunity to go to the house of God. वह तो खुश हो जाता था जब उसको परमेश्वर के भवन में जाने का मौका मिलता था So he spent a lot of time to have that intimate relationship with his creator. और उसने बहुत ही ज्यादा समय बिताया है उस रचयिता परमेश्वर के साथ। Whenever through his action God was grieved. और जब भी उसकी कृतियों के द्वारा परमेश्वर को दुख पहुंचा है, Yes, he was not a perfect man, हाँ वो तो परिपूर्ण व्यक्ति नहीं था, but he took time to repent and ask forgiveness from God. लेकिन उसने परमेश्वर के सामने समय निकाला है, उसने पश्चाताप किया है, परमेश्वर को प्यार दिखाने के लिए दर्शाया है। So David had that anointing. Because of that anointing, he was able to serve his generation. और दाऊद के पास तो वो अभिषेक था और उस अभिषेक की वजह से वे अपनी पीढ़ी में सेवा कर पाया है। Third thing, तीसरी बात, David persevered in his life to serve his generation. और दाऊद ने तो हर एक मौके को चुना है और पूरी तरीके से वो आगे बढ़ता गया है। The Bible says that when he was anointed, और जब उसको अभिषेक प्राप्त हुआ from था that time till he became king, और उस समय से राजा बनने के समय so तक there was 13 years gap. और 13 साल का वो समय था, But he did not give up on the call of God. लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी, परमेश्वर की योजनाओं को कभी भी तुच्छ नहीं माना। He did not go back to his old life, वह कभी भी अपने पुराने जीवन में नहीं चला गया, but he persevered. लेकिन वह आगे बढ़ता गया है। He did not have a lot of people to rule over, और उसके ऊपर तो बहुत सारे लोग नहीं थे, but whatever people that came in his life, लेकिन जितने भी लोग उसके पास आए हैं, he turned those people into mighty warriors. और उन सभी लोगों को तो उसने एक महा ऐसे योद्धा बना दिया है। So he was ready to work when he was waiting for his calling.
और वे उस समय भी कार्य कर रहा था जब तक कि वे अपनी बुलावट को पूरा होता हुआ ना देखे। So he persevered in his calling. तो उसने अपनी बुलावट में आगे बढ़ने का चुनाव किया है। Another thing, एक और बात, how did he serve his generation? उसने अपनी पीढ़ी में कैसे सेवा की है। In order for him to serve his generation, और अगर वे अपनी पीढ़ी में सेवा करना चाहता था, he understood his own generation. उसने अपनी खुद की पीढ़ी को समझा है He understood the times that he was living in. और उसने वो समय को समझा है जिसमें वे जी रहा था। So today, if you want to serve this generation, अगर आज आप अपनी पीढ़ी की सेवा करना चाहते हैं, you need to understand this generation. आपको इस पीढ़ी को समझना जरूरी है। You need to understand the current affairs and the things that are going around in this present time. और आज के समय में जो बातें हो रही हैं, जो भी बातें चल रही हैं, वो सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। Oh, whenever a revival came, और जब भी कोई बेदारी आई है, oh, those people who God used as a revivalist, और जिनको भी परमेश्वर ने बेदारी लाने के लिए चुना था, they understood their times. उन्होंने अपने समय को समझा है। They began to weep and cry out to God. वे रोने लगे हैं, परमेश्वर को बुलाने लगे They हैं said, God, humble us. और परमेश्वर से उन्होंने कहा है, परमेश्वर हमें नम्र कर दीजिए, God, melt us and mold us. परमेश्वर हमें पिघला दीजिए, हमें पूरी तरीके से आपके अनुसार बना They दीजिए। began to pray and fast and seek the face of God. वे तो रोने लगे हैं, परमेश्वर की उपवास और प्रार्थना करते हुए उसके सामने जाने लगे हैं। So even we see in the word of God, और हम परमेश्वर के वचन में भी देख सकते हैं, God says the men of Issachar, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इसकार के मनुष्य, they knew the understanding of their times. और वे अपने समय को समझने वाले थे। So today understand the time that you are living in. और आज आप जिस समय में रह रहे हैं उस समय को समझिए। And we see that this time that we are living in today और आज जिस समय में हम जी रहे हैं are very dark वो times. बहुत ही ज्यादा अंधकार भरे समय है। Seems like all the problems are coming and surrounding the entire world. और ऐसा लग रहा है कि सभी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं और पूरी सृष्टि के ऊपर एक अचानक से संकट आ गया We है। have this global pandemic. और हमारे सामने तो ये पूरी तरीके से दुनिया भर में होने वाला एक पैंडेमिक है। Oh, natural calamities are happening. Fires are coming every day. Earthquakes are happening every day. और अनेक तरीके से भूमिकंप हो रहे हैं, अनेक तरीके से अग्नियां लग रही है, बहुत ज्यादा बुरी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। Oh, the world is in turmoil. और पूरी दुनिया तो मानो बहुत ही ज्यादा विपत्तियों से भरा हुआ So है। this is the generation that God has chosen you. और आज परमेश्वर ने आपको ऐसी पीढ़ी में चुना है। And as you look at this generation, और आप जब इस पीढ़ी को देखते हैं, as you look around yourself, और जब आप अपने आसपास देखते as you हैं, look around your neighborhood, और जब आप अपने आस पड़ोस में देखते you will हैं, understand the problems and the things that are going around. और कौन सी परेशानियां और दुख लोगों के जीवन में है। Many mighty men and women of God, और अनेक ऐसे महापरमेश्वर के दासी और दास, God used them mightily. परमेश्वर ने जिनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया They है, started new ministries उन्होंने नई नई सेवकाएं शुरू की हैं, because they saw what was going around in their neighborhood and their society. क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जिस समाज में रह रहे थे, जिस जगह पे रह रहे थे, वहाँ पे कौन सी परेशानियां चल रही थी। People heard the news और लोगों ने तो खबरें सुनी है and they responded. और उन्होंने तो प्रतिक्रिया दी है। Oh, even we see the life of Mother Teresa. और हम मदर टेरेसा के जीवन को देख सकते She हैं, heard that there is a lot of suffering with the lepers. और उन्होंने तो सुना कि अनेक कोढ़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। Oh, so she came and she began to serve those people. और वे आई हैं और यहाँ पर उन्होंने सेवकाई शुरू की है, So she served her generation. और उसने अपनी पीढ़ी में सेवकाई की है। People like Mahatma Gandhi, और महात्मा गांधी के जैसे लोग, they left their career उन्होंने तो अपने कामों को छोड़ दिया है and they served that generation. और उन्होंने अपनी पीढ़ी में काम किया है। So the word serve is used. और यहाँ पर सेवा शब्द इस्तेमाल हुआ है, And the word of God talks a lot about serving. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बार बार सेवकाई के विषय में बोलता है। It says in Matthew chapter 20 and verse 28, For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life a ransom for many. मत्ती का 20वां अध्याय और 28 वचन, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राण दे। So here we see that Jesus, the Son of God, came to serve others. और यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र था, वह परमेश्वर की सेवा करने के लिए आया है, लोगों की सेवा करने के लिए आया Many है। wanted to become king, और अनेक लोग राजा बनना चाहते but थे, here king became a servant. लेकिन यहाँ पर तो राजा एक मनुष्य बन गया है। Many want to become God, अनेक लोग तो परमेश्वर बनना चाहते but हैं, here God became a man. लेकिन यहाँ परमेश्वर मनुष्य बन गया And he came and served the human beings. और उसने आकर मनुष्यों की सेवकाई की है। To serve in Greek means diakonio. और अगर हम सेवा शब्द को ग्रीक में देखें तो डाइकोनियो शब्द इस्तेमाल हुआ है। It means to minister or to become an attendant. इसका मतलब है सेवा करना या किसी की मदद करना। It also means to wait at tables to serve people. इसका मतलब है कि मेज पर इंतजार करना ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। So it is a very humble position. और ये बहुत ही ज्यादा नम्रता की जगह है, And that's what God expects you and me to do.
और परमेश्वर ऐसी आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है। So brothers and sisters, भाई और बहन, as the topic of our message is, कि आज का हमारा संदेश है we need to serve our generation. कि हमें अपनी पीढ़ी की सेवा करनी है So many people need our help. और अनेक लोगों को आज हमारी मदद चाहिए। And God is looking at you and me. और परमेश्वर आज आपको और मुझे देख रहा The है। question is, और आज का प्रश्न है who will go for him? कि उसके लिए कौन जाएगा। If you say that, yes Lord, I am, use me. और अगर आज आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं, God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा You will be a blessing to this generation. और आप आज इस पीढ़ी के लिए एक आशीर्वाद का कारण बन Not only जाएंगे। this generation, और सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, but the generations to come. लेकिन आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए। If we are alive today, अगर आज हम जीवित हैं, our hand needs to find something to do. इसका मतलब है कि आज हमारे हाथों को कुछ तो पाना चाहिए ताकि हम काम कर सकें। We need to have ideas and thoughts. और आज हमारे मन में अनेक विचार आने चाहिए, सोच आनी चाहिए। Because as we read the word, जैसे हमने वचन पढ़ा है that when person is in the grave, कि जब मनुष्य कब्र में जाता है, there is nothing to do. वहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं होता। Remember, याद रखिए, one day we are going to face God, एक दिन हमें परमेश्वर का सामना करना है and He's going to ask you, और वे आपसे पूछेगा what did you do with your life? कि आपने अपने जीवन के साथ क्या किया। You had so much of time. और आपके पास तो बहुत ज्यादा समय था Why did you waste your life? और तुमने अपना जीवन क्यों बर्बाद कर लिया। What will you answer? आप उस समय क्या उत्तर देंगे। That day is coming soon. और वो दिन तो काफी नजदीक आ रहा है Maybe you would have wasted a lot of your life. और शायद आपने अनेक अपने समय को बर्बाद किया होगा But अपने let जीवन में, today be a different day. लेकिन आज एक अलग दिन होने पाए। Just surrender your life. अपने जीवन को समर्पित करिए And just like David, और दाऊद के जैसा, who God testified about him, और जिसके बारे में तो परमेश्वर ने खुद गवाही दी है that he served his generation. कि उसने तो अपनी पीढ़ी की सेवा की है, He did the will of God. उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। God proudly said, और परमेश्वर ने तो गर्व से कहा I है have found a man according to my own heart. कि मैंने तो एक ऐसे मनुष्य को पाया है जो मेरे मन के अनुसार चलता I है। was searching for a long time. मैं तो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से ढूंढ रहा था, Finally, I found him. लेकिन मैंने उसको पा लिया है। Maybe in this generation, और आज इस पीढ़ी में God is searching for a man or a woman. और परमेश्वर आज एक स्त्री या पुरुष को ढूंढ रहा है Let that search end. और आज खोज है वो अंत होने पाए। When you say, yes, Lord, I am there. और जब आप कहेंगे कि परमेश्वर हाँ मैं हूँ, Use me for your glory. परमेश्वर आपके कामों के लिए मुझे इस्तेमाल And कीजिए। when you do that, और आप जब ऐसा करेंगे, God is going to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें, Let's just surrender our life. आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। Lord, I want to be that man, that woman in this generation. परमेश्वर मैं आज वो स्त्री बनना चाहती हूँ, मैं आज वो पुरुष बनना चाहता हूँ इस पीढ़ी में। I want to be the one who will serve this generation. और परमेश्वर मैं एक ऐसा व्यक्ति होना चाहता हूँ जो इस पीढ़ी की सेवा करेगा। Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall
Lord, we surrender our life. परमेश्वर हम अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं। We want to serve this generation, Lord. परमेश्वर हम इस पीढ़ी की सेवा करना चाहते हैं। Hallelujah. Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। We need your anointing. हमें आपके अभिषेक की जरूरत है। We need a vision, O Lord. हमें एक दर्शन की जरूरत है। Lord, let us be persistent. और परमेश्वर हमारी सहायता करिए ताकि हम बने रहने पाए। Lord, let us understand the times that we are living in. और परमेश्वर हमें सहायता करिए ताकि हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय को हम समझ पाए। Heavenly Father, in the name of Jesus. स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम And में, Holy Spirit, in your amazing presence. पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत उपस्थिति में, Thank you for speaking to us. धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। As we have surrendered our life, जैसे कि हमने अपने जीवन को समर्पित किया है, you have taken control of our life. आपने परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण लिया है। And like David, और दाऊद के जैसे we want to serve our generation हम आज अपनी पीढ़ी की सेवा करना चाहते हैं। and complete the calling that is over our life. और परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर जो भी बुलावट है हम उसे पूरा करना चाहते हैं। Help us, Holy Spirit. हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा। Lord, let us not waste our time. परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि हम अपना समय बर्बाद ना करने पाए Let our life be a meaningful life. और हमारा जीवन तो एक मकसद से भरा होने पाए। Lord, bless everyone today. परमेश्वर हरि को आप आशीर्वादित कीजिए। Whatever they are going through, परमेश्वर आज वो जिन बातों से गुजर रहे हैं, let them feel your presence. परमेश्वर आज भी आपकी उपस्थिति को महसूस Let करने them have पाए। an assurance that God is with me, परमेश्वर आज उन्हें एक भरोसा होने पाए कि परमेश्वर आप उनके साथ हैं, that He is with me. कि परमेश्वर आप उनके साथ He हैं, is not going to leave me alone. कि परमेश्वर जो मेरा है वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। Lord, bless everyone today who are struggling with some kind of things in their life. परमेश्वर आज जितने भी लोग अपने जीवन में जिस बातों से भी संघर्ष कर रहे हैं, आप हर एक की सहायता करिए। Lord, we declare your peace in some families today. और परमेश्वर आज हम कुछ परिवारों में आपकी शांति को बोलते हैं, Oh, especially among husband and wife. विशेष रूप से पति और पत्नियों के बीच में, Oh, that there is a lot of fights going on. कि अनेक तरीके से लड़ाइयां चल रही हैं। Oh, they are thinking about separation. और अनेक लोग तो आज परमेश्वर एक दूसरे से अलग होने की सोच में हैं। But right now, take control of their situation. लेकिन इस समय में परमेश्वर वो सारी बातों का आप नियंत्रण ले लीजिए। Remove that pride and that arrogance from their life. उनके जीवन से वो घमंड की आत्मा को हम निकाल देते हैं, Let them love one another. वो एक दूसरे को प्रेम करने पाए। Lord, we pray for those who are sick today. और परमेश्वर आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, By the stripes of Jesus, be healed now. यीशु मसीह के मार खाने की वजह से आज चंगे हो जाएं। Sickness be broken in the name of आज वो Jesus. सारी बीमारी का सामर्थ टूट जाने पाए Power of demons, we command you, go in Jesus' name. और सारी शैतानी आत्माओं का जो प्रभाव है वो निकल जाने पाए। Give them success, O Lord. परमेश्वर आज उनको यश दे And दीजिए let this year be a year of going forward. और ये साल उनके लिए आगे बढ़ने का साल होने पाए। Bless our nation. आज हमारे राष्ट्र को आशीर्वादित Oh कीजिए। Lord, heal our nation. परमेश्वर हमारे राष्ट्र को चंगाई दे Heal दीजिए the nations of this world. और परमेश्वर ये सारे जो राष्ट्र है दुनिया भर के सभी को चंगाई दे We दीजिए। thank you for everything. हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Once again, God bless you फिर से एक बार परमेश्वर आपको आशीष दे as you serve this generation. और आज जब आप इस पीढ़ी की सेवा करेंगे Let God be और glorified. परमेश्वर की उसके द्वारा महिमा होने पाए। Remember that your life is meaningful. याद रखिए कि आपका जीवन तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। God cares about you. परमेश्वर आपके बारे में चिंता करता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे।